Hello, fellows. I welcome you all to our channel Learn English with me, Nandita. Today we will be dealing with Adrian Rich's Trees. It's a first flight poem. It's in your main course book, First Flight, and it is being written by Adrian Rich, as I have already told you, uh, a feminist author and poet. She was very well known to write about women rights and anything that was related to women emancipation. So this uh, poem is nothing different. This poem is also, though about trees, is a consciously talking of women rights and the women's fight against the societal norms. So there are two crux of this poem. One is the relationship and the fight between man and nature, and the other one is the relationship that the subdued humans, especially the womankind, suffer under the overpowering societal norms, which has some covert pressure upon them, and they cannot actually grow and prosper properly, just like the trees inside a home. A tree's natural surrounding is the forest, the outside world. Similarly, any human being's natural propensity tendency is to reach out to the world, to prosper and showcase their own talents to the world, and not be subdued inside a house, right? So that's what the womankind face, and that's what this poem is all about. So the trees are symbolically representing women, right, or the subdued human beings. Through this poem, the poet actually talks about how when you have a confined space and power, you cannot really grow into your full strength and full potential. And Adrian Rich is showing that through the confined space given to trees inside homes. As you can see in the picture that I have selected, the tree, though it has been grown inside the house, is trying to go out of the house through the windows, and its roots are trying to grow away from the house. That is exactly what is happening inside this poem as well. There are trees inside the house which are trying to escape, the roots are trying to escape into the forest, which is calling those trees, and the poet is acting as a watchful eye, which is watching and telling the real story, the true story, the convincing story of these trees, and in a way of these women who have been trapped in this confined space, in this confined norms of society. Now they are trying to get free, and though the poet is welcoming the move, but she is not taking part in it because she wants to be in the group of audience, so that later on she can convey the message to the audience group convincingly. Right, so let's see and dive into the poem and learn more about it. Let's start with the theme or the message of the poem. ठीक है, तो पहले ट्रीज जो है, ये पोएम जो है एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है, और इस पोएम में दो पॉइंट आते हैं. एक तो मैन वर्सेस नेचर का जो रिलेशन है उसके बारे में है, और दूसरा जो सबकॉन्शियसली दिया गया है वो है विमेन काइंड, मतलब जो औरतें हैं वो सोसाइटी के नॉर्म से कैसे फ्री होना चाहते हैं, कैसे आज़ाद होना चाहते हैं, एकदम ट्रीज की तरह वो दिखाया गया है. ठीक है, तो जो मैसेज है वो बेसिकली यही है कि ट्रीज या फिर जो विमेन काइंड है वो दे आर नॉट हैप्पी, है ना, उन लोग खुश नहीं है by the activities of human beings. The trees are not happy by the activities of human being, by getting confined in the inner space of the houses. उन लोग जो अंदर घुसा के उनको उगाया जा रहा है उससे वो खुश नहीं है. ठीक उसी तरह विमेन जो है, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जब घर पे ही रहने के लिए बोला जाता है, उनकी ड्यूटी सिर्फ घर तक ही सीमित कर दी जाती है, तो वो भी खुश नहीं है. So
क्रक्स ऑफ द पोएम या फिर जो मेन पॉइंट ऑफ द पोएम है, ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, मैन वर्सेस नेचर का एंड वुमेन काइंड वर्सेस सोसाइटी का, ठीक है। सो अ प्लांट इज ब्रॉट इनसाइड द हाउस व्हेन इट इज अ सैपलिंग, बट एज इट ग्रोज इट गेट्स suffocated with the limited space available. So everywhere the plant or tree is there, basically it is actually notifying women also, girls also. तो जब तक गर्ल रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब तक उन लोग अपने घर में अपने पापा मम्मी के साथ खुश हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उनको भी बाहर जाना ज़रूरी है। तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि वी मस्ट गिव फ्रीडम टू एवरीवन टू प्रॉस्पर टू देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। उनका पूरा पोटेंशियल वो एक्वायर कर सके और पा सके, ये ताकत, ये शक्ति सबको मिलनी चाहिए, किसी को भी रोक के नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम ग्रोइंग टू देयर फुल पोटेंशियल। दैट इज़ व्हाट द स्टोरी, द पोएम इज अबाउट, एंड दैट इज़ व्हाट द lesson that we learn from the poem, or the moral that we take from the poem. So what is the basic summary of the poem? The summary of the poem is the trees are a voice of womankind who have been subdued, ठीक है, and they are actually engaged in activities, and though it is an unnatural poem and whatever is happening is not something which happens normally, okay, like they are trying, the roots are trying to get away, है ना, they are growing fast and they are trying to get away from the house where they have been trapped, right? It is not a very conventional poem. As I have told you, it's an unnatural poem in other ways also. जैसे कि नेचर को जब हम लोग नेचर पोएम जब लिखते हैं तो हम नेचर के बारे में ही लिखते हैं और नेचर और मैन का ही रिलेशन दिखाते हैं, और ऐसा कभी उसमें नहीं दिखाया। ज़्यादातर जो भी नेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको दिखाया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि नेचर के ऑपोजिट हो। लेकिन यहाँ पर वैसा है, ट्रीज जो हैं वो खुद से चल के या उनके रूट्स अचानक से रात में ही ग्रो करके बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो पोएम है वो उसी थीम, उसी समरी वही दिखा रहा है कि रात को ही उन लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया, और ये रूट्स जो हैं अपने ट्रीज और ब्रांचेस और सबको ले करके बाहर निकल जाने वाले सुबह तक। ये पोएट लिख रही है, मतलब लेटर्स लिख रही है और देख रही है, और इसी चीज़ को वो कन्वे कर रही है पोएम के द्वारा, ठीक है। सो इट इज़ दो लाइक वट एवर इज हैपनिंग इज बेसिकली अननेचुरल, बट इट इज़ बीन शोन थ्रू द नेचुरल इमेजरीज, है ना। यहाँ पर आप सन रेज के बारे में सुनते हैं, यहाँ पर आप जो बर्ड्स पर्च करते हैं ट्रीज़ के ब्रांचेस के ऊपर, इंसेक्ट्स जो ट्रीज़ के छोटे छोटे प्लांट्स या बुशेस में छुप जा सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि ये सब जो है तभी हो पाएगा जबकि ट्रीज़ जो हैं वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में चले जाएं और फॉरेस्ट में चले जाएं, और जो ट्रीज़ को लोगों ने ट्रैप करके रखा है वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रीज़ जो हैं, उनकी जो बाउज हैं या उनके जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, वो सारे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है खिड़कियों से भी, है ना। और उन लोग इतने इम्पेशेंट हैं, जैसे कि कोई बहुत आईसीयू का पेशेंट बहुत सालों के बाद उठा है और वो बाहर निकल जाना चाहता है, तो वैसे ही उन लोग भी बाहर निकल जाना चाहते हैं। और ये पोएम जो है इसी स्ट्रगल को दिखा रहा है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ट्री टू एस्केप दिस कन्फाइंड सराउंडिंग ऑफ द ग्रीन हाउस, और इवन द हाउस, normal house. You keep trees inside normal houses also, ठीक है। However, trees here are actually symbolic representation of womankind and how they too want to escape the insufferable inner world, ठीक है। तो ये जो trees का जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, वो women का भी जद्दोजहद है। गर्ल्स या women जो हैं, औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको भी जब उनको ट्रैप करके घर में ही रहने के लिए बोला जाता है, या घर के काम ही करो, तुमको बाहर क्यों जाना है, तुमको पढ़ाई क्यों करना है, बताया जाता है, तो उनके लिए भी लाइफ इनसफरेबल हो जाता है, बहुत तकलीफदायक हो जाता है, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस नाउ, ये बहुत सालों से चले जा रहा है। तो जब ये ट्रीज़ बाहर निकल रही हैं, तो जब ये ट्रीज़ बाहर निकल रही हैं या फिर विमेन काइंड बाहर निकल रहे हैं, तो जो स्पीकर है, जो कि पोएट भी हैं, वो बैठ करके उस वक्त लेटर्स लिख रही हैं और उनको जाते हुए देख रही हैं, उनको रोक भी नहीं रही है, उनके साथ पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही है।
ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाह रही है कि वो जो रह गए हैं, जिन लोग विस्पर्स कर रहे हैं, विस्पर्स कर रहे हैं मतलब जिन लोग पीछे से रोकने टोकने की बातें कर रहे हैं, छोटे मोटे मतलब मुद्दे उठा रहे हैं, उनके लिए वो रुक जाए और उनको ये कन्विंसिंग आंसर बाद में दे सके। फिर फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या बता रही है कि जो जब वो इन लोग जब बाहर निकल के जा रहे हैं, ट्रीज या फिर विमेन काइंड है, तो एक विंड ऑफ चेंज उनको नज़र आ रहा है और सब कोई उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर जो फॉरेस्ट है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रीज़ के पॉपुलेशन को, विमेन के पॉपुलेशन को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और जो सदियों से एक मिरर इमेज रह गया है, वो मिरर इमेज जो है उसके टुकड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही पोएम है बेसिकली। एंड इससे क्या होता है, इस पोएम से हम लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मिल रहा है। ओके, इट इज़ अ पोएम विच प्रोवाइड्स अ फ्यूचरिस्टिक approach to every one of us, especially the women, and it is laced with, means it is decorated with feministic undertone। मतलब फेमिनिज्म, क्योंकि एड्रियन रिच जो है वो फेमिनिस्टिक ऑथर एंड पोएट थी, वो औरतों के मुद्दों के बारे में लिखती थी, तो इसमें भी वो फेमिनिस्टिक अंडरटोन्स हमें नज़र आते हैं। राइट, सो लेट्स रीड आउट द पोएम एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ समरी ऑफ इट, तो मैंने आउटलाइन दे दिया है, पर फिर से रीड करके समझ लेते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, when no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या बता रहे हैं कि जो ट्रीज पॉपुलेशन है, जिनको कि दबा करके ग्रीन हाउस में दबा के रख दिया गया है, उतने ही छोटे जगह पे रख दिया गया है, या फिर घर में उगाया जा रहा है, जिनको जिनको अपनी नेचुरल सराउंडिंग पुकार रही है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और इनके बगैर, इन ट्रीज के बगैर जो फॉरेस्ट है वो भी एम्प्टी था, है ना, खाली था, खालीपन था उसमें, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स आकर के बैठ नहीं पा रहे थे, ट्रीज नहीं थे, इसलिए वहाँ पे इंसेक्ट हाइड नहीं कर पा रहे थे बुशेस के अंडर में, जैसे मैंने पहले भी बताया। सन जो है, सन यहाँ पर बेसिकली हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, है ना। सो सन, जैसे कि हम लोग जाकर के मम्मी के गोद में अपने सिर को छुपा लेते हैं, बेरी कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जो सन रेज हैं वो भी फॉरेस्ट में जब घनी आबादी होती है ट्रीज़ की, तो वो छुप जाती है, वो सन रेज अंदर जाकर के छुप जाती है, बट वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, सो द फॉरेस्ट वाज बेसिकली एम्प्टी। नाउ बाय मॉर्निंग इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज अगेन, फिर से ट्रीज वहाँ पर लहलहाएंगे। Now let's go to the second stanza. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, and small twigs, stiff with exertion, long cramped boughs, shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. ठीक है, सो ऑल नाइट द रूट्स आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द हाउस। उन लोग लगे हुए हैं, उन लोग अपने को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्रैक्स में से, वरांडा फ्लोर के। लीव्स जो हैं, जो पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन कर रही हैं, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ पेन, है ना, टू गो टूवर्ड्स द ग्लास, जैसे मैं इसके पहले पिक्चर में दिखाया था। फिर स्मॉल ट्विग्स है ना, ट्विग्स मतलब छोटी ब्रांचेस भी वैसे ही स्टिफ है, स्टिफ हो गई हैं अंदर रह रह करके, स्टिफ मतलब रिजिड हो गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं, है ना, अकड़ गई हैं। अब वो अपने एक्सर्शन के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मतलब ताकत लगा करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बाउज जो हैं, बाउज आर ऑल्सो स्मॉलर ब्रांचेस, दे हैव बीन लॉन्ग क्रैम्प्ड, मतलब वो अकड़ गए हैं, उनको मोच आ गई है वहाँ पर रह रहे। अब वो दे आर शफलिंग अंडर द रूफ, वो रूफ के अंडर हिल रहे हैं, शफल कर रहे हैं। एंड उन लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, जैसे कि आईसीयू से उठ करके अचानक से पेशेंट को लगता है यार बहुत दिन हो गए, अब निकलना पड़ेगा, है ना। तो जब निकलने जाते हैं लेकिन क्लिनिक डोर तक, तब दे आर हाफ डेज्ड, मतलब ऑलमोस्ट सोए हुए हैं, है ना, वैसे हालत में उन लोग निकल रहे हैं। I sit inside doors, open the veranda, writing long letters in which I scarcely means hardly, mention the departure means going away, of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichens
still reaches like a voice into the room. So now this stanza is about the poet's ideas and her perspective. ठीक है, पोएट अपने बारे में और वो जो भी देख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं. वो क्या कर रही हैं, पोएट क्या कर रही हैं, वो बैठी हुई हैं, लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं लिख रही हैं, इस डिपार्चर के बारे में नहीं लिख रही हैं. फॉरेस्ट जो है, ये जो घर का जो फॉरेस्ट है, घर की जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज है, वो बाहर निकल जा रही है. कहाँ निकल जा रही है? नाइट, आउटसाइड है ना. नाइट जो है वो फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है, मतलब सब वेलकमिंग है. एवरीवन इज वेलकमिंग दिस मूव. द स्काई इज स्टिल ओपन, स्काई खुला हुआ है. स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स, एंड लीव्स एंड लिचन्स दिस इज अगेन एलिट्रेशन, क्योंकि साउंड सेम साउंड वर्ड्स साथ में आ रहे हैं. स्टिल रिचेस लाइक वॉइस इन टू द रूम. वो लीव्स एंड लिचन्स के साउंड्स अभी भी हमारे घर तक, अंदर तक आ रहे हैं, रूम्स तक आ रहे हैं. फिर वो फोर्थ स्टैंडर्ड में आगे फिर अपने ही बारे में बताते हुए और इस ओकेजन के बारे में बताते हुए आगे लिख रहे हैं. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो मेरा सिर जो है विस्पर से भरा हुआ है. जो वो नकारात्मक आवाज़ें हैं वो अभी भी आ रही हैं, लेकिन सुबह तक वो साइलेंट हो जाएंगी. लेकिन सुनो कि ये ग्लास जो है, जो रोक के रखा हुआ था, वो ब्रेक कर चुका है और ट्रीज स्टम्बल कर रही हैं, मतलब लड़खड़ा रही हैं, लेकिन आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड जा रही है. और जो विंड है वो चेंज का विंड है. एंड इट इज़ रशिंग, मतलब हरिंग टू मीट देम, जल्दी से आकर के उनसे मिल रहा है. और जो भी ये मून था, जो ये एक धारा बंधी हुई थी, वो ब्रेक हो गया है, एक मिरर की तरह ब्रेक हो गया है. एंड it has gone into pieces and in the crown of the tallest oak. Even जो tallest oak है, जो सबसे पुराना खड़ा हुआ ओक है, उसके भी क्राउन में मतलब हेड में उसके पीसेस फ्लैश कर रहे हो. इतनी बुरी तरह से वो बिखर के टूट गया है. ठीक है. So the finally all those societal norms have been broken. That's what the poem is. So everyone is welcoming this change. राइट. सो लेट्स सी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. डिसengage का मतलब होता है रिमूव, हट जाना. स्ट्रेन का मतलब प्रेशर, मैंने बताया है. ट्विग्स या बाउस जो हैं वो स्मॉल स्टेम एंड ब्रांचेस होते हैं. एक्सर्शन मतलब एफर्ट लगाना, हार्ड वर्क करना. क्रैम्प मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाना या अकड़ जाना. ठीक है. शफलिंग मतलब मिक्सिंग, हिलना इधर उधर. डिस्चार्ज मतलब सेंट आउट हो जाना, बाहर निकल जाना. डेज्ड मतलब स्टन्ड, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, आधे सोए हुए हैं. स्केर्सली मतलब बैरली या हार्डली, जैसे मैंने बताया. डिपार्चर का मतलब होता जाना, निकल जाना, लीविंग. लिचन्स मतलब क्रस्टी पैचेस ऑफ बुशेस और फंगस, जो हरे हरे पैच होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन पैच होते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी वेट हो गया है वहाँ पर, या फंगस या एल्गी जो होते हैं उसको लिचन्स बोलते हैं. स्टम्बलिंग मतलब ट्रिप ओवर, मतलब लड़खड़ा के थोड़ा गिर के फिर संभलना. ठीक है. फ्लैश मतलब ग्लेयर या शाइन, चमकना. ओक इज़ अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री, जो कि ज़्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं. And it is used for making furniture. These are the difficult words. Now let's go to the figurative devices. Simile use हुआ है 2 बार, है ना. जैसे कि जब लास्ट में मून को मिरर के साथ, लाइक का मिरर है ना, ब्रेक्स दिखा रहा है, तो मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, सो दैट वन इज़ अ सिमिली. ऑल्सो जब पेशेंट को ट्रीज़ के साथ मतलब जो डिस्चार्ज होने वाला पेशेंट को डेज्ड या स्टन ट्रीज़ के साथ कंपेयर हो रहा है, वहाँ पर भी सिमिली है. फिर एलिटरेशंस हैं बहुत जगह पर. एल है ना, लीव्स एंड लिचन्स, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम, स्काई स्टिल. एलिटरेशन का क्या मतलब होता है? जब एक ही साउंड जो है वो 2 या 3 बार आसपास रिपीट हो रही है. ठीक है. जैसे लॉन्ग लेटर्स हो गया, ल साउंड है. फॉरेस्ट फ्रॉम, फ साउंड है ना. तो इस तरह से इंचैम्पमेंट यहाँ पर बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है. इंचैम्पमेंट का मतलब होता है जबकि सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन. फर्स्ट स्टैंजा में भी आप सेकंड लाइन से आप देखेंगे, लास्ट लाइन आने के पहले तक, है ना. सेकंड लास्ट लाइन एंड सेकंड फर्स्ट लाइन जो है, सेकंड फर्स्ट लाइन से सेकंड लास्ट लाइन तक बिल्कुल कोई कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन कुछ भी नहीं है, और एक फ्लो में वो आइडिया लिखा हुआ है. सो दैट इज एन्चैम्पमेंट.
फिर इमेजरीज बहुत सारी हैं, इमेजरीज बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे नेचुरल इमेजरीज हैं। मून हो गया, फ्रेश नाइट एयर हो गया, सन रेज बेरिंग और हाइडिंग हो गए, बर्ड्स का चप चप करना या सिट डाउन करना है ना, वो सब हो गए। तो ऑल दीज आर इमेजरीज है ना, नाइट का फ्रेश होना। फिर पर्सोनिफिकेशन है, सन का बेरी होना इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन, या ट्विग्स एंड बाउस जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंसान तो नहीं है, या उनमें उस तरह से तो नहीं हो सकता कि वो चल के जा सकें, लेकिन उनको क्रैम्प्स तो नहीं आ सकते, बट वो बताया गया है। तो ट्विग्स एंड बाउस हो गए, या सन का बेरी होना, ये सारे जो है पर्सोनिफिकेशन है। फिर मेटाफर तो है ही पूरे ही पोएम में, जहाँ पर भी ट्रीज या प्लांट आता है जैसे मैंने बताया, वो वहाँ पर बेसिकली दे आर symbolic of women. Okay, so now let's come to long answer type questions. I have distributed a long answer type question into plot question एंड थीम क्वेश्चन, मतलब मैसेज क्या है उसमें और प्लॉट क्या है, मतलब क्या हो रहा है, एक के बाद एक क्या हो रहा है, उस तरह के दो तरह के क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप इन दोनों को याद कर लेने से किसी भी प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, किसी भी थीम बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग प्रेजेंटेड थ्रू द पोएम, कौन से कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट हुए हैं। So yes, the poem presents a conflict between man and nature. Man is causing deforestation by cutting down the trees for his own use. On the other hand, he decorates his house with the trees. We are damaging our environment without even thinking about the end result. तो man और nature का conflict definitely बताया है कि हम लोग अपने ही environment को ख़त्म कर रहे हैं, deforestation कर रहे हैं, और फिर उस छोटे मोटे trees या छोटे मोटे plants ला करके घर में उगा रहे हैं, जो कि अच्छी तरह से उग भी नहीं पा रहे हैं, तो अपना ही बर्बादी कर रहे हैं। By clearing up the forest, we are endangering ourselves. Clear करके forest को अपने को ही danger में डाल रहे हैं। So is with the animals too. We are ruining their natural habitat and killing them for our fun or food. But on the other hand, we are keeping them in the cages on the pretext of safeguarding them by making sanctuaries and zoos. So it is true that we are in direct conflict with nature and making the other living beings prisoners, be it the trees or the animals. और जहाँ हम डिफॉरेस्टेशन करके अपने लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम कर रहे हैं, अपने लिए खाना पीना खान पान में कमियाँ ला रहे हैं, वहीं ट्रीज़ के ख़त्म होने से एनिमल्स का भी हैबिटेट खतरे में आ जाता है, एनिमल्स भी रह नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो और उनका केयर दिखाने के लिए हम लोग उल्टा क्या करते हैं, हम लोग जूस बना देते हैं, सैंचुरीज और नेशनल पार्क बना देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वी आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ नेचर एंड मेकिंग एवरी अदर लिविंग बींग्स प्रिजनर्स। और ये चीज़ जो है इस पोएम से, इस नेचर पोएम से एड्रियन रिच ने दिखाया है। ठीक है, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैंने शुरू में ही बताया था कि और एक कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ सबड्यूड ह्यूमन बींग्स, है ना, स्पेशली द वुमेन काइंड, है ना, लेकिन किसी भी सबड्यूड ह्यूमन बींग को भी आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पर मैं सेकंड पार्ट में जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट बता रही हूँ, वहाँ पर जहाँ पर भी मैंने ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल किए हैं, उसको आप रिप्लेस करके वुमेन भी लगा सकते हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि वुमेन के बारे में क्या दिखाया है, तो आप जस्ट रिप्लेस कर दीजिए ह्यूमन बींग्स के साथ, सबड्यूड ह्यूमन बींग्स के साथ वुमेन काइंड को। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एड्रियन रिच हैज़ बीन नोन टू यूज ट्रीज एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन बींग्स। ट्रीज को वो मेटाफर की तरह यूज कर रही है ह्यूमन बींग्स या स्पेशली विमेन के लिए। दिस इज अ रिकरेंट इमेज, रिकरेंट मतलब बार बार ये इमेज आ रही है, इस इमेजरी आ रही है पोइट्री में। न्यू मीनिंग्स इमर्ज फ्रॉम द पोएम इफ वी टेक इट्स ट्रीज टू बी symbolic of this particular meaning. If trees are to be taken as symbol of human beings, then the poem will define the efforts of humans to free themselves from the clutches of the clutches मतलब बंधन से, ठीक है, और द डिज़ायर टू अचीव एवरीथिंग। तो अगर इसको दूसरे तरह से देखा जाए, ह्यूमन बींग्स की तरफ से देखा जाए, तो ह्यूमन बींग्स या विमेन काइंड को जिनको रोक के रखा गया है, वो किस तरह से अपने जो जकड़न है उससे आज़ाद होना चाहती हैं, अचीव करना चाहती हैं बहुत सारी चीज़ें। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। ऑल द ह्यूमन बींग्स, इसकी जगह पर आप ऑल विमेन काइंड भी लिख सकते हो, और अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ बीइंग एट द टॉप इन एवरी फील्ड, स्पेशली विमेन आर ऑलवेज आस्क्ड टू बी ऑन टॉप, है ना। आप घर के काम हो या बाहर के काम हो, अगर आप लड़की हैं तो पापा आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, है ना, इवन आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, आपके घर वाले, वो चाहे कोई भी हो, ससुराल हो मायका हो, आपसे ज़्यादा उम्मीद करता है। यू
you have to be on top if you are a woman. Either they are forced by their own desire of doing so, or there is a constant peer pressure. या फिर इस वजह से आप खुद में ही अपने में ही आप खुद को प्रेशर देना लगते हो, टेंस्ड हो जाते हो कि मुझे करके दिखाना, मुझे करके दिखाना. या फिर पीयर प्रेशर होता है, मतलब आपके कलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, अच्छा उसने कर लिया तो मुझे भी करना ज़रूरी है, ऐसा हो जाता है. सो द ह्यूमन बींग्स विल सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम दिस रेस एंड ट्राई टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. सो एट लास्ट वो क्या बताना चाहती है कि अगर हम इस जकड़न को पूरी तरह से तोड़ दें तो फिर हम लोग पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं. राइट, नाउ लेट्स गो टू the plot question. The previous one was theme based question. This one is basically plot based question. ठीक है, तो प्लॉट क्वेश्चन मतलब समरी बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से. सो क्वेश्चन समथिंग लाइक इन अ नटशेल व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड व्यू इज प्रेजेंटेड इन द पोएम. कौन से वर्ल्ड व्यू को दिखाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या लिखा मैंने. द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रीज सिम्बॉलिकली वो ट्रीज को रेफर करते हैं. दे रेफर टू वुमेन हु हैव बीन हील्ड एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. तो विमेन जो थे वो एकदम जकड़ के अंदर रखी जा रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत हील हो गई हैं. अब उनको शक्ति मिल गया है और वो बाहर निकलना चाहती है फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड को रिन्यू करने के लिए, नया जोश उसमें लाने के लिए. अब विमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, द फॉरेस्ट हैज़ बिकम एम्प्टी, द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रेंडर्ड शेल्टरलेस. तो बर्ड्स, इंसेक्ट ये सारे शेल्टरलेस हो गए हैं जब तक कि ट्रीज जो कि एक्चुअली विमेन है वो अंदर रह गई हैं. तो फॉरेस्ट को जगाने के लिए ट्रीज का वापस वहाँ पर जाना या विमेन का वापस दुनिया में निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बी ऑल होपलेस. द सन रेज डू नॉट हैव द ट्रीज ट्रक्स एंड leaves to fall upon and thus reach the earth. She says that the forest will be full of trees the next morning. The roots of the trees are working hard to separate from the floor of the veranda where they have remained fixed. The leaves and branches are moving towards the glass windows. They are desperate to move out, just like a newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit of the door of a hospital in a hurry. तो बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, इवन सन रेज हो, इन सब के लिए ट्रीज़ का होना फॉरेस्ट में बहुत ज़रूरी है. तो वही वो चाह रही हैं और वो बहुत ट्राई कर रही हैं, उनके रूट्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लीव्स और ब्रांचेस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. किस तरह से, जैसे कि एक आईसीयू का पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा हो, निकलने की कोशिश करता है हरी में, ठीक वैसे ही. और पोएट क्या कर रही है? द पोएट इज सिटिंग इन हर हाउस विद द डोर्स ऑफ द वरांडा ओपन. शी इज राइटिंग लेटर्स बट डज नॉट मेंशन दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रीज. It is night time. The sky is clear and bright. Moon is visible. She can smell the leaves and lichens which seem to be calling out desperately. तो पोएट क्या कर रही है? वो बैठी हुई है, लेटर्स लिख रही है, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं लिख रही है. और नाइट स्काई जो है वो ओपन है, क्लियर है, ब्राइट मून वहाँ से दिख रहा है, और लिचन्स और लीव्स जो बाहर में है वो इनको बुला रही हैं, आ जाओ आ जाओ करके बुला रही है, डेस्परेट है एकदम से, है ना. शी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग. तो ग्लास को टूटते हुए देख रही है, मतलब जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है वो टूट जा रहे हैं. द ट्रीज आर मूविंग आउट, द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम. जो विंड है वो चेंज, विंड ऑफ चेंज है और वो उनको हग कर रहा है, गले मिल रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है. एज द ट्रीज हैव रीच्ड द फॉरेस्ट, द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ओक ट्रीज ओवरशैडोज द मून. इट सीम्स दैट द मून हैज़ बीन ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. तो अब जो है वो जो टॉल ओक ट्री है ना, जो बाहर निकल के फाइनली आ गया है, वो मून को ओवरशैडो कर दे रहा है, मून को ढक दे रहा है. और ऐसा लग रहा है कि वो मून जो है, जो मिरर की तरह था, वो टूट चुका है. तो जो उनका जो एक मिरर इमेज था वो टूट चुका है. उनका एक्चुअल इमेज, वो एक्चुअल पोटेंशियल के साथ पूरी तरह से ओक ट्री की तरह, एक मजबूत ट्री की तरह बाहर निकल के आ गया है. सो दस अकॉर्डिंग टू द पोएट द व्यू फ्रॉम बोथ एंड्स इज डिमांडिंग. मतलब वो घर के अंदर का माजरा हो या घर के बाहर का माजरा हो, दोनों ही साइड से
डिमांड तो वुमेन के ऊपर ही रहता है, डिमांड तो ट्रीज़ के ऊपर ही रहता है, एंड इट इज़ वेरी एल्यूरिंग ऑल्सो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग भी है. इट इज़ वी हु हैव टू पेव आवर सॉलिड पाथ टूवर्ड्स अ मीनिंगफुल टुमारो. इसलिए पोएट एक्चुअली बेसिकली ये बताना चाहती है कि आपको ही, वो विमेन हो, वो ट्री हो, या फिर कोई भी सबड्यूड ह्यूमन बीइंग हो, आपको अपना सॉलिड ग्राउंड खुद तैयार करना है ताकि आपका टुमारो जो है, फ्यूचर जो है, वो मीनिंगफुल हो सके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. Please do like, share, and subscribe for more such content. You have your exams coming closer and closer. All the very best to all of you. Good day and thank you.